Now we will take one more problem on marginal costing technique. So you can see this formula. In this formula we have to calculate PV ratio, BP in sales value, sales to earn profit rupees 15,000, profit when sales amounted to rupees 1,40,000. So today we are going to calculate these two new things. Third and fourth item we are going to calculate today, which is new for us. Okay, so first is we have to calculate PV ratio. Okay, so first of all we will write down the formula of PV ratio. What we have to calculate? Solution. Okay, PV ratio. We have to calculate PV ratio. So you all know the formula to calculate PV ratio is equals to contribution upon sales into 100. Okay, so contribution means sales minus variable cost. Sales minus variable cost. Variable cost means marginal cost in this question. So first of all, here at contribution we will write sales minus variable cost divided by sales into 100. Okay, so sales is how much? Sales is 1 lakh. 1 lakh. We will take in rupees. Rupees 1 lakh. Okay, and variable cost means marginal cost. Marginal cost means variable cost. Both are one and same. Okay, marginal cost is 60,000. Okay, and sales 1 lakh into 100. Okay, so 1 lakh minus 60,000, 40,000. 40,000 divided by rupees 1 lakh into 100. So the answer is 40%. So 40% is PV ratio. If 40% is PV ratio, it means the remaining 60% is variable cost. And PV ratio plus variable cost is equals to your sales. Okay, so PV ratio is simply the contribution in percentage. 40% means fixed cost and profit is the 40%. Okay, next we will calculate BP in sales. Okay, so we will write down the formula of BP in sales. BP in sales, okay, is equals to fixed cost divided by PV ratio. As I told you, if you know the PV ratio, then always you have to apply this formula to calculate BP in sales. That is fixed cost divided by PV ratio. Okay, fixed cost is given in the question. Fixed cost is 30,000. Write that 30,000 here. Okay, PV ratio just we have calculated 40%. Write this. Okay, so solve this, you will get the BP in sales. Okay, so 30,000 into 100 divided by 40. Okay, so the percentage will be written like this while solving the problem. So if you will solve this, you will get rupees 75,000. So what it means? It means if you will do the sale
of rupees 75,000, then neither you will earn profit nor you will incur loss. Okay, so the sale should be always more than rupees 75,000. Okay, now next what we have to calculate? We have to calculate sales to earn a profit of rupees 15,000. Okay, so we will write that. Sales to earn a profit of rupees 15,000. Okay, so to calculate desired sales to earn the profit, okay, rupees 15,000, then this is the formula. Okay, this is the formula. PV ratio is equals to contribution upon sales. Okay, so contribution means to calculate the contribution, you know there are two formulas. Contribution is equals to sales minus variable cost, and contribution is equals to fixed cost plus profit. But whenever you have to calculate the desired profit or the desired sales, then always you have to take contribution is equals to fixed cost plus profit. Always you have to write this formula. Always you have to write this formula. Okay, so कंट्रीब्यूशन की जगह फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही लेना है कंपल्सरली. सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेना है. अगर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट लोगे तो तुमको नहीं समझेगा कि 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा. ठीक है, तो यही लेना है हमेशा डिजायर्ड प्रॉफिट निकालते समय, डिजायर्ड सेल निकालते समय. ओके, सो अब हम पीवी रेशियो में फिर से यही लिखेंगे. कंट्रीब्यूशन की जगह ये लिखना है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स. अभी हमको क्या निकालना है? 15,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए तुम्हें कितना सेल करना पड़ेगा ये निकालना है. तो ये सेल्स को हमें इस साइड ले जाना है. ठीक है, सेल्स को हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ये वाला, ये तो दिख रहा है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको बड़ा सर्कल करती हूँ. ठीक है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. क्या है? डिज़ायर्ड प्रॉफिट निकालने के लिए, डिज़ायर्ड सेल्स निकालने के लिए हमेशा ये वाला फॉर्मूला रखना है. सिंपली ये क्या है? कंट्रीब्यूशन है. कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो का ही फॉर्मूला है. ये क्या है? पीवी रेशियो का ही फॉर्मूला है. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है ना. पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है. कंट्रीब्यूशन की जगह पे हमने यहाँ पर क्या लिया? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेना है. ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं लेना है. ठीक है, तो अब ये जो सेल्स है हमको क्या करना है? सेल्स निकालना है ना. तो सेल्स को यहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे सेल्स को, और जो पीवी रेशियो है वो नीचे लिखना है. नीचे लिखना है. ओके, सो सेल्स तो हमें कैलकुलेट करना है. फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है. कितना है फिक्स्ड कॉस्ट? 30,000. और हमें कितना प्रॉफिट कमाना है? प्रॉफिट भी दिया है 15,000, वही लेना है 15,000. ओके, पीवी रेशियो कितना है? पीवी रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है. पीवी रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कितना? यहाँ पे कैलकुलेट किया था 40%. पीवी रेशियो है 40%, तो ये 40% लेंगे. पीवी रेशियो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 40%. अब इसको सॉल्व करेंगे तो तुमको समझेगा कितना सेल करना है 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे. कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, 30,000 प्लस 15,000
45,000 ओके इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, इसको इस तरह से लिखेंगे 45,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 40। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1,12,500। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1,12,500। यानी इसका मतलब क्या है, अगर 1,12,500 का सेल होगा, ठीक है, 1,12,500 का सेल होगा, तब जाके 15,000 प्रॉफिट कमा पाओगे। हमने क्या किया था, 15,000 प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा वो कैलकुलेट करना था। तो इतना सेल करोगे तब जाके इतना पॉकेट में पैसा आएगा, इतना अर्न करोगे, इतना प्रॉफिट मिलेगा। तो इस फॉर्मूले से हमको पता चलता है डिजायर्ड सेल कितना होना चाहिए, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो इधर डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है, 15,000। डिजायर्ड प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोगों ने सेल्स निकाला, इतना सेल करेंगे तो इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। ठीक है, अब एक और चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स अमाउंटेड टू ₹1,40,000। अगर 1,40,000 का प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल करना पड़ेगा। ओके, अब हम वो देखते हैं। देखो, फोर्थ, प्रॉफिट व्हेन सेल्स अमाउंटेड टू ₹1,40,000। यानी अगर इतना सेल होगा, 1,40,000 का सेल होगा तो कितना प्रॉफिट कमाओगे। ठीक है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स अमाउंटेड टू ₹1,40,000। अगर इतना सेल हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है, इतना सेल हुआ तो प्रॉफिट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगेन इसका भी वही फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला जो पहले लिखा था हमने, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा सॉल्व करना है। हमको क्या करना है, इसमें सेल्स दिया है हमको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सेल्स दिया है, इतना बिकेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, हमें वो पता करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें इसको सॉल्व करना है। तो पीवी रेशियो, ये सेल्स यहाँ आएगा, into profit. ओके, देन हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, ये प्रॉफिट निकालना है, तो ये प्रॉफिट को हम एक तरफ ले जाएंगे, बाकी ये सबको एक तरफ ले जाएंगे और प्रॉफिट एक साइड रहेगा। ठीक है, सेल्स पीवी रेशियो, ये ही दोनों है सेल्स। ठीक है, ये यहाँ पर आता है तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता ना, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर की है। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रॉफिट, पीवी रेशियो इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सेल्स कितना है, 1,40,000, और फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 30,000। ठीक है, तो पीवी रेशियो कितना है, 40%। सेल्स कितना है,
1,40,000। ओके, और फिक्स कॉस्ट कितना है? ₹30,000। 30,000। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 14 4 ज़ा 56, 56,000 एक तीन माइनस 30,000, तो कितना आएगा? 26,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम 1,40,000 का सेल करोगे तो तुमको प्रॉफिट कितना होगा? 26,000। ओके, सो कभी कभी तुमको दिया रहेगा अगर इतना प्रॉफिट कमाना है तो कितना सेल करना पड़ेगा, या फिर इस क्वेश्चन की तरह अगर इतना सेल करना है तो कितना प्रॉफिट कमाना पड़ेगा। तो ये सब कुछ तुमको है फाइंड आउट करना है। प्रॉफिट के बेसिस पे सेल फाइंड आउट करना है, सेल्स के बेसिस पे प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।